morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain English grammar chapter 2 determiners. So in this chapter determiners are used before nouns to indicate which particular person or thing we are referring to. They do not describe nouns but point them out. Determiners का यूज नाउन से पहले किया जाता है टू इंडिकेट करने के लिए विच पर्टिकुलर पर्सन, उस विशेष व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है वी आर रेफरिंग टू, जिसको हम रेफर करते हैं। दे डू नॉट डिस्क्राइब नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है बट पॉइंट देम आउट, लेकिन नाउन को पॉइंट करता है। लुक एट दीज फ्रेजेस, द बेस्ट बॉय, दैट ट्री, some mistake, my brother, every student, whose cleverness. The word printed in colored letters are determiners. जो word printed है red color से वो आपके determiners हैं, like the, that, some, my, every, whose are the letters determiners. Now we are talking about the kinds of determiners. We have the following kinds of determiners. Number 1, article a and the. Number 2, demonstrative, this, that, these, those. Possessives, my, your, his, etc. Number 4, distributives, either, neither, each, every. Number 5, qualifiers, some, any, much, many, several, etc. And number 5, and number 6, interrogatives, what, which, whose, etc. In our number 1 articles, you have learned that there are 3 articles, a and the. आप पढ़ चुके हैं पहले कि there are 3 articles, 3 articles होते हैं a and the. The words a and an are called indefinite articles. जो a और n वर्ड्स होते हैं वो indefinite articles में आते हैं because क्योंकि they do not point to any special person or thing, क्योंकि ये जो है कोई special thing या person व्यक्ति को point नहीं करता है। The word the is known as the definite articles. जो word the है वो definite article के अंतर्गत आता है because क्योंकि it points, ये point करता है, ये to a specific person, एक स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट करता है और थिंग या कोई वस्तु को पॉइंट करता है। The indefinite articles are used with singular countable nouns. जो indefinite articles हैं उनका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। The article are is used before word starting with a consonant sound. जो आर्टिकल है उसका यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के पहले करते हैं, while जबकि n is used before words, जबकि n का यूज हम before words उन वर्ड्स के पहले करते हैं जो begin with a vowel sound, जो vowel sound से स्टार्ट होते हैं। The indefinite articles are also used. Indefinite articles का यूज यहाँ भी हो सकता है, जब होता है to refer to something mentioned for the first time. To refer, किस चीज को refer करना, to something, किस चीज को mention, जो mention होती है for the first time, जो पहली बार mention होती है। For example, I bought a newspaper at the station. मैंने स्टेशन से एक न्यूज़पेपर खरीदा। यहाँ पर आ का यूज हुआ है, आ न्यूज़पेपर। Number 2, it was an interesting idea. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, तो इसमें an interesting का यूज, and का यूज इंटरेस्टिंग के पहले आया है क्योंकि आई जो इंटरेस्टिंग वर्ड है जो
वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है। Now to refer to something you do not want to be specific about, to refer something किसी चीज को refer करता है you do not want, जिसको आप चाहते नहीं हैं to specific about, उसके बारे में कोई स्पेशल चीज नहीं है, इसको नहीं चाहते हैं। For example like a girl came to see you, एक लड़की आई to see you आपको देखने के लिए, तो इसमें a girl। Next to refer to a person's profession, किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को रिफर करना। फॉर एग्जाम्पल ही इज एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, यहाँ पर हम किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को रिफर कर रहे हैं। नेक्स्ट इन डेफिनेशंस, फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशंस में यूज होता है लाइक एन अपोजियम इज अ मार्शपेल, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड। अब डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ होगा ये देखते हैं। टू मेक अ स्पेसिफिक रेफरेंस, किसी भी स्पेशल रेफरेंस को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दैट्स द शॉप आई वाज लुकिंग फॉर, ये वही शॉप है जिसको मैं देख रहा था। और when we are talking to someone who knows which thing or person we are referring to, when जब हम we are talking हम बात करते हैं तो someone किसी भी व्यक्ति की who knows जो जानता है तो which thing or person, कौन सी thing या कौन सा person we are referring, तो जिसको हम रिफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वाटर इन द फ्रिज, यहाँ पर फ्रिज में कुछ पानी है। टर्न द टेलीविजन ऑन, यहाँ पर द फ्रिज द टेलीविजन इज अ इंडेफिनिट आर्टिकल में इसमें यूज हुआ है। तो जनरलाइज अ क्लास, किसी भी क्लास को जनरलाइज करना, लाइक द टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, टाइगर है एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसमें द टाइगर। बिफोर एन एडजेक्टिव when it is used as a noun, adjective से पहले जब ये as a noun यूज होता है, indicate nationality, जब ये indicate करता है nationality को indicate करता है और क्लास किसी क्लास को indicate करता है। For example जैसे for example the rich can be selfish, यहाँ पर rich पूरी जाति के बारे में आ रहा है कि अमीर लोग, the rich can be selfish, बहुत ही स्वार्थी होते हैं। The Swiss are famous for their watches and chocolates, the Swiss famous है, प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? Their watches and chocolates, उनके यहाँ watches और chocolates के लिए Swiss जो है वो आपका ये फेमस है। Before the names of rivers, नदियों के नाम के आगे seas, समुद्र के नाम के आगे ओशियंस और महासागरों के नाम के आगे और माउंटेन्स के नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द आल्प्स, द इंडियन ओशियन। बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नेम के पहले व्हेन दीज आर रिफर्ड, जब ये रिफर्ड होते हैं टू इन एन इंप्रेशनल वे, जब ये इंप्रेशनल वे रिफर होते हैं। फॉर एग्जांपल he was hit on the head, तो यहाँ पर ये द यूज हुआ है, द हेड। नेक्स्ट आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन, अब यहाँ पर वो आर्टिकल्स यूज हुए हैं जो प्रॉपर नाउन के साथ में यूज होते हैं। जनरली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन्स, जनरली हम जो लोग हैं वो आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं विद प्रॉपर नाउन के साथ में। लाइक नंबर 1, शेक्सपियर वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर एक महान लेखक थे जो एक महान ड्रामेटिस्ट थे। नंबर 2, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, मुंबई जो है भारत की सबसे बिगेस्ट सिटी है, सबसे बड़ी सिटी है। However, sometimes we use a proper
the with it, like a Gandhi. We need a Gandhi to solve our problem. A Gandhi. Number 2, every team cannot have a Kapil Dev in it. Number 3, Sachin Tendulkar is the right man of India. So in the first sentence, a Gandhi means a man. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में गांधी का मतलब यहाँ पे है एक व्यक्ति एज वाइज है जो कि बुद्धिमान है, एज अ ग्रेट एज गांधी, गांधी जी की तरह ही बुद्धिमान है. इन द सेकेंड सेंटेंस में अ कपिल देव मीन्स, यहाँ पर कपिल देव का मतलब है अ प्लेयर ऑफ कपिल देव कैलिग्री, एक कपिल देव की तरह ही एक प्लेयर. इन द लास्ट सेंटेंस में द ब्रैडमैन मीन्स, यहाँ पर ब्रैडमैन का मतलब है द प्लेयर ऑफ ब्रैडमैन एबिलिटी, जिसमें ब्रैडमैन की योग्यताएं हैं. अब हम बात करते हैं वेयर नॉट टू यूज एनी आर्टिकल, जहां पर हम कहीं भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स. हमें ये बहुत ही याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करते हैं. भगवान इसमें दिया गया है विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ में हम इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज वेलकम गुड न्यूज, मैं हमेशा नंबर 3, विद द नेम्स ऑफ हॉलीडेज, हॉलीडेज के नेम के आगे भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई विल मीट माय अंकल ड्यूरिंग ईस्टर, मैं अपने अंकल के चाचा से मिला ईस्टर के दौरान. विद द नेम ऑफ मंथ्स, मंथ्स मींस महीनों के नाम के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल, लास्ट सितंबर ही वाज इन कोलकाता, लास्ट सितंबर में वो कोलकाता में था. विद द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के नेम के आगे भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. लाइक वी विल गो आउट ऑन संडेज, हम संडे को जाएंगे. विद द नेम्स ऑफ सीजन्स, मौसमों के नाम के आगे भी हम इसका यूज नहीं करते. फॉर एग्जांपल, साइबेरियन ट्रेन्स विजिट आवर जू इन विंटर. When we speak of the time of the day or with the names of meal, जब हम स्पीक की बात करते हैं टाइम ऑफ द डे, किसी भी दिन के समय की बात करते हैं, और द नेम्स ऑफ मील्स या भोजन के समय की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, आई शुड फिनिश बाय नून, मैं इसको दोपहर तक फिनिश कर दूंगा. व्हाट शैल वी हैव फॉर डिनर, हमारे पास क्या है फॉर डिनर के लिए, हम क्या करेंगे. विद वर्ड्स सच एज हॉस्पिटल, इसमें जो वर्ड्स आए हैं हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और स्कूल, व्हेन दे आर यूज्ड, जब इनका यूज हम करते हैं फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस, कोई इंटेंडेड पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं, दैट इज मेडिकल, एजुकेशनल, etc. फॉर एग्जांपल, ही विल हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर अ व्हाइल, he will stay, वो ठहरेगा इन हॉस्पिटल में फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए. नेक्स्ट, द रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का रिपीटिशन, एक सेंटेंस में कई बार हम आर्टिकल का यूज करते हैं. लाइक लुक एट दी सेंटेंसेस, इस सेंटेंस को हम देखते हैं. आई कैन सी अ व्हाइट एंड अ ब्लैक काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड. आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, अ व्हाइट मींस सफेद एंड अ ब्लैक, सफेद काली गाय ग्रेजिंग इन द फील्ड, जहाँ फील्ड में चल रही है. 2 cows, one white and the other black, यहाँ पर 2 गाय दिखाई गई हैं, जो एक ब्लैक है और एक व्हाइट है. I can see a white and black cow grazing in the field. नेक्स्ट सेंटेंस है, I can see, मैं देख सकता हूँ, a white and black cow grazing in the field. यहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की जो गाय है वो यहाँ पर फील्ड में चल रही है. ओनली 1 cow which is
ब्लैक एंड वाइट, केवल एक गाय है जो ब्लैक एंड वाइट है। तो हम यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं कोई भी आर्टिकल्स का। नेक्स्ट, the director and the producer of the movie were not present. किसी मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रेजेंट नहीं थे। तो टू पर्सन्स, इसमें दो व्यक्ति हैं, वन डायरेक्टर एंड अदर प्रोड्यूसर। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर है। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी वाज नॉट प्रेजेंट। द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस मूवी का प्रेजेंट नहीं था। Only one person who is both the director and the producer of the movie. यहाँ पर एक मूवी में एक ही व्यक्ति है जो उस मूवी का डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। So this is the use of article. Now we will discuss about the second determiner, that is demonstratives. So demonstrative determiners help to point to specific noun. तो determiners, demonstrative determiners जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं टू पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन, किसी भी स्पेशल या स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए। We use this and these to refer to person or objects that are nearby, while that and those are used in the context of persons or objects that are at a distance. For example, this book is heavier than that one. Example number 2, these mangoes are sweeter than those. We use this and these. हम यूज करते हैं this and these का to refer to person, किसी भी person को या object को refer करने के लिए that are nearby, जो हमारे पास होता है। while जबकि that and those और that और those का यूज करते हैं हम in the context of person और objects, उस context of person का या object का that are at a distance, जो हमसे बहुत दूर पर है, दूरी पर है। For example इसमें दिया गया है this, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये आपका है this is a heavier but that one, ये बुक जो मेरे पास है वो बहुत भारी है than that one, जो हमसे दूर रखी हुई है उससे। नंबर 2, these mangoes are sweeter than those, जैसे मेरे पास बहुत सारे मैंगोज हैं तो उसके लिए हम these का यूज करेंगे and those का यूज करेंगे जो हमसे बहुत सारे आर्टिकल्स हमसे दूर रखे हुए हैं। तो these and those are used before plural nouns. तो as you can see in the above sentences, जैसा कि आप इन ऊपर के सेंटेंस में देखते हैं we use this and that, हम this और that का यूज before singular noun के साथ करते हैं। this और that का यूज हम singular noun के साथ करते हैं, while जबकि these and those का यूज हम before plural noun के साथ पहले करते हैं। we can use this and that before uncountable nouns, हम this and that का यूज before countable noun के पहले करते हैं, as well as और countable noun के पहले भी करते हैं। For example, इसे एग्जाम्पल दिया गया है who has spilled this milk, किसने ये दूध फैलाया है। that apple is rotten, ये एप्पल सड़ चुका है, ये सड़ा हुआ है। नेक्स्ट डिटरमाइनर आपका आता है नंबर 3, possessive and adjectives such as my, his, our, your, their, etc. are used to indicate possessions or belonging of the noun and are used before a noun or sentence. जो adjective जैसे कि my है, his है, your है, our है, their है, etc. are used, का use हम करते हैं to indicate possession, किसी भी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, और यह बिलोंगिंग्स जो नाउन को बिलोंग करते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए। एंड आर यूज्ड बिफोर अ नाउन इन सेंटेंस, जो सेंटेंस में नाउन दिया गया है उसको वो नाउन से बिलोंग करता है, उसके लिए हम इन पोजेसिव्स का यूज करते हैं। रीड दी सेंटेंसेस। नंबर 1, आई गेव माय सैंडविच टू हिज ब्रदर, मैंने अपना सैंडविच अपने भाई को दे दिया। पुट माय बुक इन हर बैग, मेरी बुक अपने बैग में रख लो। The highlighted adjectives show
पोजीशन और बिलोंगिंग एंड आर पोजेसिव डिटरमाइनर। जो कलर्ड वर्ड है, हिज है, माई है, हर है, ये क्या है, ये शो कर रहे हैं पोजीशन को, और बिलोंगिंग्स को जो क्या कहलाते हैं, पोजेसिव डिटरमाइनर्स। These can be used before singular or plural nouns। इनका हम यूज कर सकते हैं before मीन्स पहले, सिंगुलर और प्लूरल नाउन पहले इसका यूज कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। रिगार्डलेस चाहे वो आपका काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। माई बुक, आवर ड्यूटी, योर पर्सेस, माई बुक्स, योर पर्स। इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, माय है, अवर है, योर है, माय, ये आपके पोजीशंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर डिटरमाइनर से, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव्स। इन डिस्ट्रीब्यूटिव्स refer to a person or thing one at a time। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो रिफर करते हैं एक व्यक्ति या एक वस्तु को जो क्या है एक ही समय में मौजूद होते हैं, लाइक ईच, एवरी, ईदर, नीदर आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। इनका यूज होता है नाउन से पहले इन अ सेंटेंस में टू इंडिकेट, किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए। ईच वन ऑफ द नाउन, इस प्रत्येक नाउन के प्रत्येक वर्ड को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लाइक जैसे कि हम बात करते हैं ईच और एवरीथिंग, तो वी यूज ईच व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन। हम यूज करते हैं ईच का जब हम थिंग सोचते हैं, आप थिंग के बारे में सेपरेटली अलग अलग हम बात किसी चीज को हम सोचते हैं वन बाय वन। टॉक टू ईच चाइल्ड, बात करना प्रत्येक बच्चे से। वी यूज एवरी व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स एज अ ग्रुप। हम एवरी का यूज करते हैं जब हम सोचते हैं किसी भी चीज को एज अ ग्रुप, पूरे ग्रुप के बारे में सोचते हैं। द मीनिंग इज, पूरे ग्रुप के बारे में सोचते हैं। द मीनिंग इज विदाउट एक्सपेक्शन। एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड प्रोटेक्शन। प्रत्येक बच्चा, यहाँ पर कुछ सारे बच्चों के बारे में बात चल रही है कि प्रत्येक बच्चा नीड्स भी चाहता है, लव प्यार चाहता है, प्रोटेक्शन और रक्षा चाहता है। वी यूज ईच फॉर अ स्मॉल नंबर। हम इस ईच का यूज स्मॉल छोटे नंबर के लिए यूज करते हैं। प्रीफरेबली जैसे कि प्रेफर करते हैं टू और द नंबर इन द ग्रुप, जैसे कि 2 हो या उससे ज्यादा नंबर ऑफ द ग्रुप हो। शुड एटलीस्ट बी लिमिटेड। कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर हो वो लिमिटेड हो, डिफाइन जैसे करता हो। एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर इज लार्ज और इंडेफिनिट। एवरी का यूज हम करते हैं जब द नंबर इज लार्ज और इंडेफिनिट, जब कोई नंबर बड़ी होती है या इंडेफिनिट होती है, उसका कोई भी डेफिनिट साइज नहीं होता है। लाइक नंबर 1, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर हैज द सेम लेंथ। यहाँ एक स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक साइड जो है सेम लेंथ की है, एक ही लंबाई की है। नंबर 2, एवरी इंडियन मस्ट बी प्राउड ऑफ हिज और हर कंट्री। प्रत्येक भारतीय को प्राउड होना चाहिए अपने कंट्री, अपने देश के लिए। अब हम यूज करते हैं ईदर। ईदर हैज 2 मीनिंग्स। यहाँ पर ईदर की 2 मीनिंग दी गई है। नंबर 1, एनी ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स और थिंग। कोई भी 2 डिफरेंट, कोई अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग चीजें। नंबर 1, यू कैन टेक ईदर बस। आप कोई भी बस ले सकते हैं। एनी ऑफ 2 बस, 2 बसों में से कोई भी आप बस अब चूज कर सकते हैं। नंबर 2, ईदर बुक कैन सर्व माय पर्पस इक्वली वेल। प्रत्येक बुक जो है कैन सर्व कर सकती है माय पर्पस, मेरे उद्देश्य को इक्वली बराबर वेल, अच्छे से। एनी ऑफ 2 बुक्स, कोई भी 2 बुक्स में से। अब नंबर 20 पे दिया गया बोथ। टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव कम अप on either side of the road। जो टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती है ना, have come up on either side, दोनों साइड होती हैं, of the road, रोड के दोनों साइड होती हैं। on both the side, दोनों साइड की तरफ।
अब बात करते हैं नीदर। नीदर इज द अपोजिट ऑफ ईदर। नीदर जो है वो विलोम है, उल्टा है, अपोजिट है इसके ईदर के। इट मींस नॉट द वन नॉट द अदर। इसका मतलब हुआ नॉट द वन, एक नहीं है, या नॉट द अदर, या दूसरा भी नहीं है। अब इसमें एग्जांपल की बात करते हैं। नंबर 1, neither candidate deserve our support। इसमें से कोई भी कैंडिडेट जो डिजर्व नहीं करता है, हमारा सपोर्ट जो है वो नहीं डिजर्व करता है। नंबर 2, यू शुड टेक अ नीदर साइड। आप कोई भी साइड नहीं ले सकते। नंबर 5, आप डिटरमाइनर आया है क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स टेल अस समथिंग अबाउट नंबर और क्वांटिटी। क्वालिफायर्स जो होते हैं बताते हैं हमको समथिंग, कुछ बताते हैं अबाउट नंबर और क्वांटिटी, क्वांटिटी या नंबर के बारे में बताते हैं। रीड दी सेंटेंसेस। नंबर 1, कैन यू लैंड मी सम शुगर। क्या तुम मुझे कुछ चीनी उधार में दे सकते हो। नंबर 2, few people turn up for the meeting। कुछ लोग अपनी मीटिंग पर टर्न अप कर रहे हैं। तो the highlighted words like some and few provide information। कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं about the quantity of a noun। नाउन की क्वांटिटी को प्रोवाइड कराते हैं। and are called, इसीलिए ये कहलाते हैं qualifiers। some common qualifiers are any, much, many, several, little, some and few। यहाँ पर कुछ क्वालिफायर्स दिए गए हैं। any है, much है, many है, several है, little है, some है and few। These can be used to suggest number as well as quantity and accordingly used with the countable and uncountable। तो हम इन क्वालिफायर्स का यूज कर सकते हैं टू सजेस्ट नंबर को सजेस्ट करने के लिए एज वेल एज और क्वांटिटी को सजेस्ट करने के लिए। आर एंड आर अकॉर्डिंगली, जैसे अकॉर्डिंग हो, एंड विद द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आप इसका यूज कर सकते हैं। Now we use many, several and few with plural countable nouns since they suggest number। हम यूज करते हैं many का, several का and few का with plural countable noun के साथ में since जब they suggest number, जब वो नंबर को सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिया गया है many lions, several bushes। तो qualifiers much and little refer to quantity। जो क्वालिफायर मच और लिटिल है वो क्वांटिटी को रिफर करते हैं। एंड कैन ओनली बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, और जो केवल अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मच फॉर लिटिल गो। द वर्ड सम एंड एनी कैन बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल एज वेल एज काउंटेबल नाउन्स। जो वर्ड्स हैं सम और एनी है, इसका हम यूज कर सकते हैं बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कर सकते हैं। However, we generally use some in affirmative sentences। हम जनरली यूज करते हैं सम का विद इन affirmative sentences में, and any in negative sentences, और any का यूज करते हैं negative sentences। Like example number 1, some houses are being renovated in that area। इसमें some का यूज हाउसेस के साथ हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नंबर 2, आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर एट अ मोमेंट। यहाँ पर एनी का यूज इन नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज हुआ है। वी आल्सो यूज एनी व्हेन वी विश टू सजेस्ट दैट वी आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक। हम एनी का भी यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ये करते हैं वी विश टू सजेस्ट, जिसमें हमें इच्छा होती है टू सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट करने के लिए वी आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग, कि हम किसी चीज को लुकिंग नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, कोई स्पेशल चीज को नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी यूज वॉच एनी मूवी दैट यू लाइक। यू कैन वॉच, आप देख सकते हैं एनी मूवी, कोई भी मूवी देख सकते हैं दैट यू लाइक, जो आपको पसंद हो। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल डिनोट करते हैं क्वांटिटी को, एंड आर यूज, और इनका यूज होता है बिफोर द अनकाउंटेबल। इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू
डिनोट करते हैं नंबर को एंड आर यूज और इनका यूज होता है बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले इन द प्लूरल नंबर little, not much, hardly, any. It is used almost in the negative sense. इसका यूज हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए होता है. There was little support for the strike. hardly any. A little, at least some, though not much. We still have a little money with us. We can buy a decent dinner. The little, the whole quantity, though very little. The little rice that the shopkeeper showed me was of an inferior quality. Few, not many, almost none. This TV channel is not good. ये TV चैनल अच्छा नहीं है. It shows few good programs. इसमें कुछ ही अच्छे चैनल्स आते हैं. Almost none. A few, at least some, though not many. Last evening I went to the cinema with a few friends. Last evening, पिछली शाम मैं गया to the cinema गया with a few friends, कुछ दोस्तों के साथ. The few, all of them, though very few. The few trees left on the hillside do not bear any fruit. The few trees, कुछ trees जो हैं left on the hillside, जो hillside के left side में है, not bear any fruit, वहाँ पर कोई भी fruit नहीं लगे हुए. अब हम last 6 determinant की बात करते हैं interrogatives. Interrogatives, determiners that help to ask question. Maybe this described as interrogative. वो determiners that help जो मदद करते हैं to ask question. Question पूछने के लिए हमारी मदद करते हैं. Maybe describe, जो describe हो सकते हैं as interrogatives. Like what, which, whose, how much and how many are interrogatives. ये interrogatives के अंतर्गत आते हैं. They can be used before any kind of noun. ये किसी भी kind of noun के पहले इसका यूज कर सकते हैं. Like what train, which basket, whose bag, what books, which baskets, whose bags, which milk, whose travels. Now student, this is the full explanation of the chapter 2. Now let's we will talk about some exercise of this chapter. Exercise number 1, tick the correct option. यहाँ पर हम कुछ optional exercise है, इसमें हम टिक करेंगे. Say sentence number 1, a determiner is a word that dash. यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं. Option number 1, it identifies or specifies a noun. Number B, comes before a noun. Number C, limits its meaning, and number D, all of these. तो आपका आंसर नंबर बी जो ऑप्शन है वो सही है. A determiner is a word that comes before a noun. Next sentence number 2, which article is used before a word beginning with a vowel sound. यहाँ पर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो before a word beginning with a vowel sound, तो vowel sound के पहले इसका यूज करते हैं. ऑप्शन नंबर ए, option number B, and option number C, the, option number D, none of these. So option number B, and is used before a word beginning with a vowel sound. So student, there are many exercises in this chapter you have to do in your book. Next exercise is exercise number 2. How many determiners does each sentence have? यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डिटरमाइनर, इसमें कौन सा डिटरमाइनर है और कौन डिटरमाइनर है इसमें. जैसे इसमें दिया गया है आइडेंटिफाई देम एज वेल एज द नाउन्स दे आर हेल्प इंडिकेट. फर्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट बाय एनी फूड. तो इसमें फूड जो है वो नाउन है जो डिटरमाइनर
इसमें यूज हुआ है एनी। द फ्रेंच आर आर्टिस्टिक, तो इसमें द आपका डिटरमाइनर है और फ्रेंच आपका नाउन है। हैव यू सीन मैनी टूरिस्ट टुडे? मैनी इज अ डिटरमाइनर एंड टूरिस्ट इज अ noun. So there are 9 and 10 sentences you do yourself. And next exercise number 3. Read the given sentences, underline the determiner. इन सेंटेंस को रीड करिए और डिटरमाइनर को अंडरलाइन करना है एंड राइट डियर टाइप, और इसके टाइप्स बताना है कि कैसा डिटरमाइनर है, आर्टिकल है, डेमोंस्ट्रेटिव है, पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव और क्वालिफायर। इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, इसमें आपको फिल करना है। एग्जांपल नंबर 1, द बॉय इन दैट स्वेटर इज माय कजिन। जो बॉय रेड स्वेटर में है मेरा भाई, चचेरा भाई है। तो इसमें आपका आर्टिकल दा जो है वो आर्टिकल है। अब सेंटेंस नंबर 1, दैट बुक इज माइन, तो इसमें आपका डिटरमाइनर है दैट, और दैट आपका कौन सा डिटरमाइनर है, डेमोंस्ट्रेटिव। दोस फैक्ट्स आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड, दोस डिटरमाइनर जो है ये भी है आपका डेमोंस्ट्रेटिव। एवरी सिटीजन शुड रिस्पेक्ट हिज मदरलैंड, इसमें एवरी डिटरमाइनर है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच शॉपकीपर हैड क्लोज्ड द शॉप, इसमें ईच डिटरमाइनर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव। मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द मैच, मैनी डिटरमाइनर्स है qualifiers. Now exercise number 4, fill in the blanks with a and or the where necessary. हम यहाँ पर a and the का यूज करेंगे जहाँ पर necessary है। I am a regular reader of the Times of India. I particularly enjoy a page containing the puzzles and brain teasers. Sentence 2, the rain kept beating against the windows and kept us away all the night. Sentence 3, an insect has 6 legs but a spider has 8. Therefore we cannot describe a spider as an insect. Sentence number 4, the principal called a meeting of the staff to discuss the date sheet. They could not arrive at an unanimous decision in a meeting. Sentence number 5, in a spring we plant the rose bushes along the garden wall so that we could enjoy the blooms in the summer. And exercise number 5, fill in the blanks with the demonstrative this that these those whenever discouraged. Dear Ishan, how are you? Dear Ishan, आप कैसे हो? Look here, यहाँ देखो, this gift is for you. ये गिफ्ट आपके लिए। Please accept it. कृपया इसको accept कीजिए, स्वीकार कीजिए। Happy birthday to you, आपको आपकी जन्म की हार्दिक बधाई। Please tell me, मुझे बताओ how you like this gift. आपको यह गिफ्ट कैसा लगा? I have selected this gift. मैंने ये गिफ्ट सेलेक्ट किया है among many gifts, बहुत सारे गिफ्ट में से, in the shop, दुकान में। But लेकिन those gifts were not looking so attractive, कि वो सारे गिफ्ट ज़्यादा attractive नहीं थे। Those gifts were cheap also, वो सारे गिफ्ट बहुत सस्ते थे। But लेकिन I like this, मुझे ये पसंद आया। I like this gift, not for its cost, कि उसकी कीमत ही नहीं, but for its utility. See this gift, ये गिफ्ट देखो, on this table, उस टेबल पर रखा हुआ है। Who has brought, कौन लाया है this gift? That gift also seems very beautiful, ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। There are many other gifts, यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। Also on this table, इस टेबल पे, please let me know, कृपया मुझे बताओ, who has brought these gifts, ये गिफ्ट कौन लाया है? Next exercise number 6. Complete the sentence with suitable possessives. Akash is fond of tea. He takes his tea in his own cup. His sisters do not like tea. They have bottles of water on their tables. Any one of them may drink water from their own bottle. Their parents say our children are very
obedient. We are proud of our children. Do you also obey your parents? Okay. अब next exercise है exercise number 7. Fill in the blanks with distributive determiners either, neither, each or every. Follow the example. Example number 1. I have watched as movie of Amitabh Bachchan. The answer of this sentence is I have watched every movie of Amitabh Bachchan. In sentence number 1, dance of the student was called for the rehearsal one by one. तो हम यहाँ पर each fill करेंगे. Each of the students was called for rehearsal one by one. Both shirts are equally good. You can buy either shirt. Every word of your story is touching. Every Sunday I go to the nearby temple. Every boy was proved guilty. Both were acquitted by the court. Exercise number 8. Fill in the blanks with the suitable qualifiers. Some, any, much, many, few, several. Follow the example. Example number 1. Give me dash tea. The answer is give me some tea. In sentence 1, children were given some toffees. There is so much salt in the soup. I haven't received any message from him so far. Few trees have been cut down to broaden the roads. Pass him some rice. His plate is empty. In exercise 9, complete the conversation with the help of suitable determiners. Now we are talking about this conversation. There is a Nikki and teacher. Those are talking to each other. Nikki says, "Good morning, ma'am." Good morning, ma'am. Teacher, good morning, Nikki. What is the matter? क्या मामला है? Nikki कहती है, "Ma'am, these students have not understood the lesson on integer." मैम ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटीजर के इस लेसन को ठीक से नहीं समझे. टीचर कहती है, "I am sure all of them have understood." मैं श्योर हूँ कि सारे बच्चे हैं अच्छे से समझ गए हैं द लेसन को. निकी कहती है, "Yes ma'am." हाँ मैम, बट लेकिन they are two in number. ये दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं. All of them are not bothered. और सारे बच्चे हैं नहीं bother कर रहे हैं, but both of them are serious. बाकी दो सीरियस है, बाकी सीरियस नहीं है. टीचर कहता है, "डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन." मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगी. एक्सरसाइज 10, फिल द डिटरमिनर्स हियर रिक्वायर्ड. हमें यहाँ पर डिटरमिनर फिल करना है जहाँ पर इज दैट फ्रॉम और टोड. तो हम यहाँ पर फिल करेंगे इज दैट आ फ्रॉम और आ टोड. आर यू कमिंग फ्रॉम आ वॉक विद मी. म्यूजिक इज द ग्रेट सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट. There wasn't any soul to be seen in the park. He decided to enter the priesthood. This is the latest news from Olympic Stadium. In rage, I tore this letter to pieces. Number 8, firework displays was the high point of evening. Number 9, there is a place on a wall where paint is coming out. Number 10, as car grew never I realized this man was stranger. So student, this is your all exercises. I explained all chapter and all exercises. You carefully noted down your notes in your English grammar copy and exercise should be in your book. Thank you.